So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to menstrual health, a fundamental right, Supreme Court. Second issue is related to India's climate goals. Third issue is related to Jal Jeevan Mission. Fourth issue is related to special status versus special category status states. So let's discuss all the issues in detail. Recently, Supreme Court of India declared menstrual health a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. In this session, we will discuss why Supreme Court of India officially declared right to menstrual health as an integral part of right to life and a right to education. We will also discuss about what is Article 21. Why a news? In a landmark ruling on 30 January 2026, the Supreme Court of India officially declared that the right to menstrual health and access to menstrual hygiene management are integral part of right to life under Article 21 and the right to education Article 21A. Recently, Supreme Court of India ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन के इंटीग्रल पार्ट है। राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर गिवन किया गया है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंडर गिवन किया गया है। अ बेंच issued a binding mandate for all schools, government, aided and private nationwide. सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इंडिया के और स्कूल के लिए राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड कुछ बाइंडिंग मैंडेट इशू किए हैं। की मैंडेट फॉर स्कूल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी स्कूल्स के लिए की मैंडेट्स क्या रिलीज किए हैं। द कोड ले डाउन अ 3 month implementation window for the following: नंबर 1 फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, नंबर 2 MHM कॉर्नर्स, नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, नंबर 4 सेफ डिस्पोजल, नंबर 5 करिकुलम रिफॉर्म। Number of free menstrual product. All schools must provide free biodegradable sanitary napkins of high quality of student from class 6 to 12. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फर्स्ट मैंडेट गिवन किया है, इस मैंडेट के अंदर क्लास 6 to 12 तक के स्टूडेंट के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ये मैंडेट गिवन किया है कि फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराए जाएं सभी स्कूल के अंदर। नंबर 2 MHM कॉर्नर्स। MHM मीन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। एवरी स्कूल मस्ट एस्टेब्लिश मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स। स्टॉक विद इमरजेंसी सप्लाई लाइक स्पेयर इनरवेयर, यूनिफॉर्म एंड डिस्पोजेबल बैग। नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड। School must provide functional, gender-segregated and disabled-friendly toilets with running water and soap. Number 4 safe disposal. Installation of environmentally compliant disposal mechanisms such as covered bins or incinerators is now mandatory. Number 5 curriculum reforms. NCERT and SCERT have been directed to include gender-responsive content on menstruation and poverty to break social taboos. एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के लिए डायरेक्ट गिवन किया गया है कि करिकुलम के अंदर जेंडर रिस्पॉन्सिव कंटेंट ऑन मेंस्ट्रुएशन एंड पॉवर्टी, ये सब सोशल टैबू को ब्रेक करने के लिए करिकुलम में ऐड किए जाने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। स्टेट कंसिक्वेंस। Private schools who fail to comply may face to derecognition, while state government will be held accountable for government-run institutions. जो स्कूल सुप्रीम कोर्ट की इन ऑफिशियल डिक्लेरेशन या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, उन स्कूल को डी रिकॉग्निशन किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस में ये गाइडलाइंस फॉलो की जाए। इंस्पेक्शंस। District Education Officer will conduct annual inspection and obtain anonymous feedback from students through surveys. Shared responsibility. The Supreme Court emphasized that menstruation is not just a women's issue, and sensitization of boys and male teachers is essential to eliminate harassment and absenteeism.
Article 21 of the Indian Constitution. Article 21 of the Indian Constitution is widely considered the heart of fundamental right. आर्टिकल 21 को कॉन्स्टिट्यूशन का अ, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल माना जाता है और ये एक फंडामेंटल राइट है। ऑल फंडामेंटल के एक हार्ड के तौर पर इसको देखा जाता है। इट स्टेट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये ऑल सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट गिवन किया गया है कि किसी भी पर्सन को उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए प्रोसीजर को फॉलो ना किया जाए। इट मीन्स यहाँ पर विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसी भी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता। की फीचर्स ऑफ आर्टिकल 21। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। राइट अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन इंक्लूडिंग सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स। राइट अंडर आर्टिकल 21 एवरी सिटीजन के लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल सभी के लिए अवेलेबल है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज प्राइमरली प्रोडक्शन अगेंस्ट द स्टेट नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। आर्टिकल 21 अगेंस्ट द स्टेट प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं करता। इट मीन्स ये स्टेट के अगेंस्ट प्रोडक्शन के लिए प्रोविजन किया गया है। cannot be suspended even during a national emergency. It is one of the few rights that cannot be suspended even during a national emergency. आर्टिकल 21 को नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। द एवोल्यूशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 21 का टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है। वेरियस इंटरप्रिटेशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। The scope of Article 21 has expanded dramatically through landmark Supreme Court judgment A.K. Gopalan versus State of Madras 1950. Initially, the court took a narrow view, ruling that Article 21 only protected against arbitrary executive action as long as a valid law existed. 1950 में पहली बार आर्टिकल 21 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आया था। इस इंटरप्रिटेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 ओनली आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोडक्शन गिवन करता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। दिस केस रिवॉल्यूशनाइज आर्टिकल 21 एस्टैब्लिशिंग दैट एनी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, नॉट आर्बिट्रेरी और ऑप्रेसिव। It also introduced the concept of golden triangle, Article 14, 19 and 21, which must be read together. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर गोल्डन ट्रायंगल का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। गोल्डन ट्रायंगल के अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को प्लेस किया गया है। ड्राइव्ड राइट्स अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर वेरियस राइट्स गिवन किए गए हैं। द जुडिशरी हैज इंटरप्रेटेड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू इंक्लूड सेवरल एम्प्लॉयड राइट्स। नंबर 1, राइट टू प्राइवेसी। नंबर 2, राइट टू लिव विद डिग्निटी। नंबर 3, राइट टू एजुकेशन। नंबर 4, राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट। नंबर 5, राइट टू लाइवलीहुड। नंबर 6, राइट टू डाई विद डिग्निटी। नंबर 7, राइट्स of prisoners. Right of privacy recognized as a fundamental right in Justice case Puttaswamy versus Union of India in 2017. 2017 में जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के ड्यूरिंग राइट ऑफ प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया। नंबर 2, राइट ऑफ लिव विद डिग्निटी established in the Maneka Gandhi case as more than just animal existence. Number 3, right to education. Originally part of Article 21, it led to the insertion of Article 21A, right to free and compulsory education for ages 6 to 14.
राइट टू एजुकेशन ओरिजिनली आर्टिकल 21 का पार्ट था, लेकिन बाद में इसको आर्टिकल 21A के अंदर इंसर्ट किया गया। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट गिवन किया गया है। नंबर 4, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इंक्लूड द राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर का सभी को राइट है। नंबर 5, राइट टू लाइवलीहुड रिकॉग्नाइज इन ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नंबर 6, राइट टू डाई विद डिग्निटी इंक्लूड द राइट टू पैसिव यूथेनेशिया फॉर टर्मिनली इल पेशेंट। टर्मिनली इल पेशेंट को यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया के फॉर्म में डाई होने का राइट गिवन किया गया है। नंबर 7, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स इंक्लूडिंग द राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर। लीगल रेमेडी ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की लीगल रेमेडीज क्या क्या है? If Article 21 is violated, an individual can directly approach सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसी भी पर्सन का आर्टिकल 21 का अगर वायलेशन होता है, देन वो इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट विया रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकता है, एंड आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग वो पर्सन डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। In this session, we will discuss India's various climate goals. We will also discuss key environmental acts and policies in India. India's key 2030-70 climate target: net zero by 2070. India aims to become a carbon neutral nation by 2070. इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल नेशन बन जाएगा। इट मीन्स कार्बन एमिशन इंडिया का जीरो होगा। एमिशन इंटेंसिटी टारगेट: रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 2030 तक 45% तक रिड्यूस करना है, और इसके लिए जो बेसिस होगा वो 2005 लेवल होगा। नॉन फॉसिल एनर्जी: achieve 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resource by 2030। इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2030 तक ओवरऑल इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स के थ्रू स्टेब्लिश करेगा। इट मीन्स प्रेजेंट में जितना भी इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इस ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्स के थ्रू स्टेब्लिश किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट: टारगेट 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू स्टेब्लिश किया जाएगा। कार्बन सिंक: create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion ton of CO2 equivalent through forest and tree cover. Emission reduction: reduce total projected carbon emission by 1 billion ton between 2021 and 2030। इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2021 से 2030 के बिटवीन कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक रिड्यूस किया जाएगा। कोर स्ट्रेटेजी एंड इनिशिएटिव्स: इंडिया ने इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो किए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं इंडिया के। नंबर 1, पंचामृत कमेटी। नंबर 2, मिशन लाइफ। नंबर 3, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नंबर 4, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नंबर 5, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। नंबर 1, पंचामृत कमिटमेंट announced at COP26. These 5 commitments guide India's current climate action plan. पंचामृत कमिटमेंट इंडिया ने COP26 के ड्यूरिंग अनाउंस किए थे। ये 5 कमिटमेंट इंडिया के द्वारा टेकिंग किए गए हैं सो दैट इंडिया में करंट क्लाइमेट एक्शन प्लान को बूस्ट किया जा सके। पंच अमृत के अंदर 5 टारगेट सेट किए गए। नंबर 1, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। नंबर 2, 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल्स बाय 2030।
नंबर 3, 1 billion ton reduction in total projected carbon emission by 2030. Number 4, 45% reduction in carbon intensity of GDP by 2030. नंबर 5, नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ये 5 टारगेट पंच अमृत कमिटमेंट के अंडर सेट किए गए हैं। नंबर 2, मिशन लाइफ, प्रोमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ के अंडर सस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। नंबर 3, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC एनकम्पास नेशनल मिशन फॉर सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल हैबिटेट। इंडिया में सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए NAPCC इंडिया का ऑल नेशनल मिशन को एनकम्पास करता है। इट मीन्स NAPCC ऑल नेशनल मिशंस का एक पेरेंटल प्रोग्राम है। नंबर 4, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। एम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में एक ग्लोबल हब बनाना चाहता है। नंबर 5, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में रिसोर्सेज मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। इंडिया की एनवायरमेंटल एक्ट, इंडिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड की एक्ट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972। नंबर 2, वाटर एक्ट 1974। नंबर 3, फॉरेस्ट एक्ट 1980। नंबर 4, एयर एक्ट 1981। नंबर 5, एनवायरमेंट प्रोडक्शन एक्ट 1986। नंबर 6, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नंबर 7, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट NGT एक्ट 2010। नंबर 8, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। नंबर 1, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। इट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व। इंडिया में वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 इम्पोर्टेंट है। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। The 2002 amendment rationalized its schedule from 6 to 4 and implemented sites provisions. 2022 में वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रोडक्शन एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। पहले इसके अंदर 6 शेड्यूल हुआ करते थे, बट अब 6 से इसको 4 शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। साइट्स के प्रोविजंस भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। नंबर ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इस्टेब्लिश द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंडिया में स्टेट एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग ही स्टेब्लिश किए गए हैं। 2024 अमेंडमेंट डिक्रिमिनलाइज्ड माइनर वायलेशंस, रिप्लेसिंग इम्प्रिजनमेंट विद मॉनेटरी पेनल्टीज। 2024 में वाटर एक्ट 1974 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, माइनर वायलेशंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया, साथ ही इम्प्रिजनमेंट जो किया जाता था माइनर वायलेशंस के अंडर, उसको अब मॉनेटरी पेनल्टीज के साथ रिप्लेस किया गया। नंबर 3, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रिक्वायर प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए अगर डाइवर्ट किया जाता है, देन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल टेकिंग करना होगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर प्रोविजन किया गया है। नंबर 4, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 रेगुलेट एयर क्वालिटी एंड इंक्लूड नॉइज पॉल्यूशन। नंबर 5, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 known as the Umbrella Act. It empowered the center to coordinate actions and set standards for all environmental pollutants. It was enacted under Article 353 following the 1984 Bhopal Gas Tragedy. Environment Protection Act 1986 आर्टिकल 253 के अंदर इनेक्ट किया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में ये एक इंसिडेंट था। इसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्ट किया गया।
Number 6, Biological Diversity Act 2002 implement the CBD Convention on Biological Diversity and Nagoya Protocol to regulate access to biological resource and ensure fair benefit sharing. It features a three-tier structure: National Biodiversity Authority at the national level, State Biodiversity Board at the state level, and Biodiversity Management Committee at the local level, all working to regulate access to biological resource, promote conservation. Number 7, National Green Tribunal Act 2010 establish a specialized tribunal for the faster disposal of environmental cases. environmental केसेस के फास्टर डिस्पोजल के लिए इंडिया में एनजेडी एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल है जो कि 2010 में इनेक्ट किया गया। इट हैज jurisdiction over 7 एक्ट but exclude the Wildlife Protection Act and Forest Right Act. Wildlife Protection Act and Forest Right Act से रिलेटेड एनजेडी jurisdiction नहीं रखता है। नंबर 8, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 मैनेज फंड 90% to state and 10% to center collected from user agencies for diverting forest land. मेजर एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। इंडिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड मेजर पॉलिसीज क्या क्या है? नंबर 1, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नंबर 2, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006। नंबर 3, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 31। नंबर 4, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। नंबर, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 aims to maintain 33% of India's land area under forest and tree cover. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का मेन एम इंडिया के ओवरऑल लैंड पर 33% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को मेंटेन करना है एंड 66% इन हिली रीजन्स। इट मींस हिली रीजन्स में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को डबल करके रखना है। ऐसा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर प्रोविजन किया गया है। नंबर 2, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 a comprehensive policy based on right to a healthy environment under Article 21, emphasizing the polluter pay and precautionary principles. Number 3, National Wildlife Action Plan 2017-31. The third such plan focusing on landscape-based conservation and climate change impact on wildlife. Number 4, National Action Plan on Climate Change NAPCC consists of 8 missions including the National Solar Mission and Green India Mission. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 8 मिशंस के द्वारा कंसिस्ट किया गया है जिसके अंडर नेशनल सोलर मिशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन भी इंक्लूड है। ये रेगुलेटरी रूल्स एंड रिसेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया। एनवायरनमेंट से रिलेटेड रेगुलेटरी रूल्स एंड फ्रेमवर्क क्या है इंडिया के अंदर? नंबर 1, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। नंबर 3, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018। नंबर 4, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। इससे पहले हमने कुछ पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पर कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 रिप्लेस द 2016 रूल्स इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ EPR सर्टिफिकेट। EPR means Extended Producer Responsibility Certificate and expanding the scope to 106 categories of electrical and electronic equipment. Number, Plastic Waste Management Rule 2016 phase out identified single-use plastic and amended EPR for plastic packaging. इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग ही सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ पर फेज आउट करने का प्लानिंग किया गया। नंबर 3, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 बेस्ड ऑन द सैलिस नायक कमेटी इट क्लासिफाई कोस्टल एरियाज इनटू 4 जोन टू रेगुलेट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। नंबर 4, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 डिसेंट्रलाइज्ड वेटलैंड मैनेजमेंट टू स्टेट एंड प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज लाइक वेस्ट डंपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नोटिफाइड वेटलैंड्स। मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्वेंशंस एंड इंडिया रूल। इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल कॉन्वेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए? नंबर 2, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस क्या क्या रहे? नंबर 3, पॉल्यूशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स क्या क्या रहे?
India is a party to most major global environmental agreement and has hosted several key conferences. Conferences related to climate change. क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए? नंबर वन, यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। 1992 में यूएनएफ ट्रिपल सी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होता है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। नेक्स्ट, पेरिस एग्रीमेंट 2015। नेक्स्ट, कॉप 26 इन 2021। यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, India ratified it in 1992. It is parent treaty for subsequent climate agreement. The annual conference of parties meeting are crucial under this convention. UNFCCC 1992 में कंडक्ट किया गया। 1992 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया। सब्सिक्वेंट क्लाइमेट एग्रीमेंट, इट मीन्स 1992 के बाद जितने भी क्लाइमेट एग्रीमेंट हुए UNFCCC उन सभी के लिए एक पेरेंट ट्रीटी रहा है। एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो मीटिंग होता है ये सब UNFCCC के अंडर ही कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 सेट लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट फॉर डेवलप्ड नेशंस। India, as a developing nation, had no binding target but participated actively in the clean development mechanism. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कंडक्ट किया गया था। डेवलप्ड नेशंस के लिए इसके अंडर लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट सेट किए गए। इंडिया बिकॉज एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया को किसी भी टाइप का बाइंडिंग टारगेट यहाँ पर सेट करना नहीं पड़ा, बट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, पेरिस एग्रीमेंट 2015 aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius. India ratified the agreement in 2016 and submitted nationally determined contribution. इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट 2015 में कंडक्ट किया गया। 2016 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखने का टारगेट रखा गया। इंडिया ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड टारगेट सबमिट किए हैं। नेक्स्ट, कॉप 26 2021 इंडिया प्लेज अ 5-point पंच अमृत एक्शन प्लान एंड द गोल टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। कॉप 26 ग्लासगो में 2021 में हुआ था। इंडिया ने इसी समिट के ड्यूरिंग 5-point पंच अमृत एक्शन प्लान यहाँ पर टेकिंग करने का टारगेट सेट किया। 2070 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने का गोल भी यही सेट किया गया। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भी कुछ कॉन्फ्रेंस हुए हैं, सच एज कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992, रामसार कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971, बोन कॉन्वेंशन 1979, साइट्स 1973, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, फोकस ऑन कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। India's Biological Diversity Act 2002 reflects its CBD commitment. India hosted CBD COP11 in Hyderabad in 2012. CBD बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग के लिए फोकस करता है। इंडिया ने 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनेक्ट किया, जो कि CBD के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया ने CBD COP11 हैदराबाद में 2012 में कंडक्ट किया था, होस्ट किया था। रामसार कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971, इंडिया joined in 1982 to conserve and sustainably use wetland and has 96 Ramsar sites. रामसार कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 में कंडक्ट किया गया, बट इंडिया ने 1982 में रामसार को ज्वाइन किया सो दैट वेटलैंड के सस्टेनेबली यूज एंड कंजर्वेशन को बूस्ट किया जा सके। प्रेजेंट में इंडिया के 96 साइट्स रामसार के अंडर हैं। बोन कॉन्वेंशन 1979, इंडिया अ पार्टी सिंस 1983, work toward conserving migratory species and hosted COP13 in गांधीनगर in 2020। बॉन कॉन्वेंशन 1979 में हुआ।
इंडिया 1983 से इसका मेंबर है। माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए इसके अंडर मेनली फोकस किया जाता है। नेक्स्ट साइट्स 1973 इंडिया ज्वाइंड in 1976 to regulate the international trade of endangered species। एंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इंडिया ने 1976 में साइट्स को ज्वाइन किया। साइट्स मींस कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट है पोल्यूशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स। पॉल्यूशन से रिलेटेड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी ग्लोबली कुछ कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स हुए हैं, सच एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बासेल कॉन्वेंशन 1989, स्टॉकहोम कॉन्वेंशन 2001, मीनामाता कॉन्वेंशन 2013, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इंडिया implemented the ozone depleting substance rule 2000 to phase out ODS। Basel Convention 1988-89। India controls the transboundary movement of hazardous waste and has banned e-waste import। Stockholm Convention 2001। India has banned several POPs to eliminate or restrict these persistent pollutants। Minamata Convention 2013। India ratified this convention in 2018 to protect against mercury। Several initiatives taken by Indian government to address climate। क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेवरल इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं, सच है। नंबर 1 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नंबर 3 क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क। नंबर 4 इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नंबर 5 गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2017। नंबर 6 एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नंबर 7 सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। नंबर 8 इंडियन एमिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। नंबर 9 कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 10 ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट अंडर G20 प्रेसिडेंसी। नंबर 1 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। Launched in 2008, the NAPCC identified 8 national missions to promote understanding of climate change, adaptation and mitigation, energy efficiency and neutral natural resource conservation। Number 1 national action plan on climate change। Under the SAPCC, states are required to develop their own action plan. As of 2022, about 33 states and UTs have prepared their SAPCC। However, the implementation and monitoring of these plans remain a challenge। Number 3 climate change research and knowledge network। The government has supported various research initiatives and knowledge networks to enhance understanding of climate change impact and response। These include the National Network Program on Climate Change Modeling, Aerosol and Coastal Vulnerability। Number 4 International Solar Alliance। It promotes the widespread adoption of solar energy, enhancing global cooperation in renewable energy। Number 5 Goal of Net Zero by 2070। India's commitment to achieve net zero emission by 2070 marks a significant step towards absolute emission reductions। Number 6 Enhanced Nationally Determined Contribution (NDCs), setting ambitious target for reducing emission intensity and increasing renewable energy capacity। Number 7 Significant growth in renewable energy capacity, rapid expansion in solar and wind energy installations, contributing to India's international non-fossil fuel energy target। Number 8 Indian Emission Carbon Trading Scheme, establishing a carbon trading scheme to incentivize emission reduction and support sustainable economic growth। Number 9 Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, focuses on building resilient infrastructure to withstand climate-induced disasters। Number 10 Green Development Pact under G20 presidency, integrating green development principles into global economic practices, showcasing India's leadership in sustainable development। In this session, we will discuss about Jal Jeevan Mission। Almost 98% of rural households covered by the Har Ghar Jal scheme now have taps। हर घर जल स्कीम के अंडर 98% ऑफ रूरल हाउस होल्ड कवर हो चुके हैं। इट मीन्स 98% रूरल हाउस होल्ड में अब वाटर टैप्स हैं। द हर घर जल स्कीम इज टू प्रोवाइड 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर पर्सन एवरी डे।
हर घर जल स्कीम के अंडर पर पर्सन को एवरी डे 55 लीटर पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। व्हाट इज द जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 15 2019 अगस्त में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन्ड टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड थ्रू इंडिविजुअल टैप कनेक्शंस। इस स्कीम के अंडर टैप कनेक्शंस के थ्रू ऑल रूरल हाउस होल्ड के लिए सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। की फीचर्स ऑफ जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के की फीचर्स क्या क्या हैं? टारगेट इनिशियली 2024 द मिशन हैड बीन एक्सटेंडेड टू 2028। इट एम्स टू प्रोवाइड 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ऑफ पोर्टेबल वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। इनिशियली 2024 में इस मिशन को 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इस मिशन के अंडर एवरी रूरल हाउस होल्ड के एवरी पर्सन के लिए पर डे 55 लीटर वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। स्कीम टाइप अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फंडिंग पैटर्न 90:10 फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो फंडिंग किया जाता है वो 90:10 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इट मीन 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 10% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। 50-50 फॉर अदर स्टेट। अदर स्टेट में 50-50 का रेशो है। 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर यूटीज। यूटीज में इस स्कीम के लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जाता है। कम्युनिटी अप्रोच ऑपरेट एज अ जन आंदोलन। इट एम्फसाइज पानी समिति, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, where at least 50% of members must be women. Sustainability focus on source sustainability measures such as grey water management, rainwater harvesting, and groundwater recharge. Current state and recent updates. Progress as of January 2026, over 15.79 crore, it means 81.58% of rural households have been covered with tap water connection. इंडिया में अबाउट 15.79 करोड़ पीपल के हाउस में टैप वाटर कनेक्शन लग चुका है। इट मीन्स 81.58% टैप वाटर कनेक्शन कंप्लीट कर लिए गए हैं। बजट 2025-26 द टोटल बजट आउटले फॉर जल जीवन मिशन हैज बीन एनहांस्ड टू ₹67,000 crore टू सपोर्ट इट्स एक्सटेंशन टू 2028। फर्स्ट हर घर जल स्टेट Goa was the first state to achieve 100% coverage. Other 100% certified state UTs include Haryana, Punjab, Gujarat, Telangana and Puducherry. गोवा इंडिया का फर्स्ट स्टेट था जो कि हर घर जल स्टेट को कंप्लीट करने वाला या इसके टारगेट को 100% तक अचीव करने वाला स्टेट बन चुका है। कुछ अदर स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना एंड पुडुचेरी हैं। Social impact. According to the WHO, successful implementation could avoid nearly 4 lakh deaths from diarrheal disease and save millions of hours daily for women previously spent collecting water. What is the difference between special status states and special category state? In this session, we will discuss various states coming under special status and special category status. What is a special category status given to a state? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, इसके अंडर कौन कौन से स्टेट आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंटर टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट दैट फेस जियोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन स्टेट को गिवन किया जाता है जो कि जियोग्राफिकली सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस कर रहे हैं। इन स्टेट के डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए ये स्टेटस गिवन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक अ प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस।
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंडर आने वाले स्टेट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं किया गया। इट मीन्स स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं किया गया, जबकि स्पेशल स्टेटस का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है। रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्लासिफिकेशन वाज रिकमेंडेड बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इन 1969। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्लासिफिकेशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा 1969 में रिकमेंडेशंस गिवन किए गए थे। उसके बाद से ही स्टेट को ये स्टेटस गिवन किया जाने लगा। फर्स्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड इन 1969। तेलंगाना इज द न्यूएस्ट स्टेट टू इंडिया टू बी अकॉर्डेड द स्टेटस। पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो गिवन किया गया वो जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड को 1969 में गिवन किया गया। तेलंगाना न्यूएस्ट स्टेट है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया गया। पैरामीटर ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बेस्ड ऑन गैडगिल फॉर्मूला। गैडगिल फॉर्मूला के बेस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर्स हैं। इट मीन्स किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सच एज इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, हिली टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज, नॉन वेएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के बिटवीन क्या डिफरेंस है। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल स्टेटस इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इंडिया में स्पेशल स्टेटस का कंसेप्ट जनरली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, नंबर टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। नंबर वन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 to 371J, which provide administrative and legislative safeguard and political and legislative rights are enhanced। जिन स्टेट को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन किया गया है उन स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव सेफगार्ड प्रोवाइड कराए जाते हैं। इट मीन्स पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव राइट्स उनके लिए एनहांस किए जाते हैं। आर्टिकल 371 के अंडर इससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। नंबर ऑफ फॉर्मल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस विच ऑफर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस डील विद ओनली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिन स्टेट को गिवन किया जाता है उन्हें ओनली फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन किया जाता है। इट मीन्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी डील किया जाता है। Before 2019, Jammu and Kashmir had a special status under Article 370, which granted the state significant autonomy, its own constitution, a separate flag, and authority to make law on all matters except defense, foreign affairs, finance, and communications. It was also a special category state for financial assistance. जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जिसको बोथ स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दोनों गिवन किए गए थे। आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग इसको स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया था। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फुल्ली सेपरेट तरीके से इसके लिए प्रोविजन किया गया था। आर्टिकल 370 के अंडर जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को गिवन किया गया था इसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी गिवन किया गया। इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करने का, सेपरेट फ्लैग, लॉ मेकिंग करने की अथॉरिटी इसको गिवन की गई। बट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसको अथॉरिटी नहीं गिवन की गई थी। करंट स्टेट होल्ड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया गया है। एट प्रेजेंट 11 स्टेट इन इंडिया होल्ड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। ये वो 11 स्टेट हैं इंडिया में जिन्हें अभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर प्रोविजन किया गया है। स्टेटस ऑफ प्रीवियस स्टेट जम्मू एंड कश्मीर विच वाज प्रीवियसली अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट इज नाउ यूटी। 14th Finance Commission effectively abolished the special category status for the purpose of financial aid.
It recommended that the special assistance constituted for the northeastern and three hill states. 14th फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इफेक्टिवली अबॉलिश कर दिया, बट नॉर्थ ईस्टर्न एंड थ्री हिल स्टेट्स को कंटिन्यू फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्पेशल असिस्टेंट के लिए इसने रिकमेंड किया। स्टेट विच हैव स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखते हैं? आर्टिकल 371 एंड आर्टिकल 371 ए टू जे। Special status to state is given under Article 371 and Article 371 A to J, which aim to address specific historical, geographical, and cultural needs. स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया में आर्टिकल 371 एंड आर्टिकल 371 ए टू जे के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल नीड्स डिफरेंट है, या इनका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड कल्चर अदर स्टेट से डिफरेंट है, और इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं इन सभी आर्टिकल के अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के अंदर स्पेशल स्टेटस स्टेट के लिए प्रोविजन किया गया है। एज ऑफ 2026 12 स्टेट हैव स्पेशल प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंट में इंडिया के 12 स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। द स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 वाज रिवोल्ड इन 2019 एंड इट इज नाउ अ यूटी। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को गिवन किया गया स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया है। इट मीन्स आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया था। स्टेट विद स्पेशल स्टेटस प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371 नंबर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371 given special responsibility to the governor to establish development board for Vidarbha, Marathwada, Saurashtra and Kutch। पहली बार इंडिया में स्पेशल स्टेटस जिन स्टेट को गिवन किया गया महाराष्ट्र एंड गुजरात थे। आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग इन्हें स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया। इस स्पेशल स्टेटस के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई कि वो विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र एंड कच्छ के लिए डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करे। इसके बाद अदर स्टेट को भी ये स्टेटस गिवन किया जाने लगा। नागालैंड आर्टिकल 371 ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट डू नॉट अप्लाई टू नागा सोशल कस्टमरी लॉ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और लैंड ओनरशिप अनलेस द स्टेट असेंबली पास अ रेजोल्यूशन। नागालैंड को 371 ए के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया। इसके अकॉर्डिंग नागालैंड के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो भी लॉ पास किया जाता है वो नागा सोशल कस्टमरी लॉ पर अप्लाई नहीं होगा। नागा पीपल के जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं, सोशल प्रैक्टिस हैं, कस्टमरी लॉ हैं या लैंड ओनरशिप से रिलेटेड जो भी लॉ है, यहाँ पर पार्लियामेंट के लॉ का इंटरफेयर नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक नागालैंड की स्टेट असेंबली एक रेजोल्यूशन इससे रिलेटेड पास ना करे। आसाम आर्टिकल 371 बी इट प्रोविजन फॉर अ कमेटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक यहाँ पर कमेटी प्रोविजन इसके अंडर की गई। मणिपुर आर्टिकल 371 सी स्पेशल कमेटी फॉर द हिल एरियाज एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नर। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर्टिकल 371 डी एंड 371 ई इट फोकसेस ऑन इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड एस्टेब्लिशिंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सिक्किम आर्टिकल 371 एफ protect existing law and land rights. The legislative assembly has a minimum of 30 members. सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मिनिमम 30 मेंबर होंगे। ये आर्टिकल 371 एफ के अंदर प्रोविजन किया गया है। मिजोरम आर्टिकल 371 जी सिमिलर टू नागालैंड प्रोटेक्ट मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिसेस। अरुणाचल प्रदेश आर्टिकल 371 एच गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। गोवा आर्टिकल 371 आई लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 30 मेंबर। आर्टिकल 371 आई के
अकॉर्डिंग गोवा के लिए प्रोविजन किया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 30 मेंबर होंगे। इट मीन्स 30 मेंबर से कम नहीं होंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। कर्नाटक, आर्टिकल 371 जे, स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हैदराबाद कर्नाटक रीजन, नाउ कल्याण कर्नाटक। आर्टिकल 371 जे के अकॉर्डिंग कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक रीजन के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। व्हाट बेनिफिट आर गिवन टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट, किसी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया जाता है देन उस स्टेट को क्या बेनिफिट गिवन किए जाते हैं। नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे 90% ऑफ द फंड टू अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स एज अगेंस्ट 60 to 75% in the case of other state, while the remaining fund are provided by the state government। किसी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया जाता है देन उस स्टेट में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्कीम पर 90% एक्सपेंड करती है, जबकि अदर स्टेट में ये परसेंटेज ओनली 60 to 75% तक होता है। रिमेनिंग फंड स्टेट गवर्नमेंट को ही फाइनेंस करना होता है। नंबर, अनस्पेंड मनी इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट लैप्स एंड इज कैरिड फॉरवर्ड, किसी भी स्टेट को जिस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया गया है किसी फाइनेंशियल इस ईयर में जो अनस्पेंट मनी है उसको लैप्स नहीं किया जाए, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जबकि अदर स्टेट में उस मनी को लैप्स कर दिया जाता है। नंबर 3, सिग्निफिकेंट कंसेशन आर प्रोवाइडेड टू दीज स्टेट इन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। इस तरह के स्टेट को इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज में सिग्निफिकेंट कंसेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर 4, 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना बजट होता है उसका 30% स्पेशल कैटेगरी स्टेट को फॉरवर्ड किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।